Hi. Welcome to our show. Hi. Talk to me. How are you, sir? I'm pretty good. How are you? I am also fine. Thank you for asking. So, first of all, very heartily congratulations to you for Thank securing rank 305 in Union Public Service Commission of 2024 batch. thank you. Heartily, once again, congratulations to you. Thank you. How are you, sir? I'm good. I'm good. How are you doing? I am also doing good. So, this podcast is all about I will not be asking you questions regarding how your preparation journey is or what happened during preparation. This is more inclined towards spiritual side of your preparation. I hope I'm clear with you. Right. So first of all, tell me about your journey in brief so that our viewers can understand. Okay. So I started my preparation back in 2018-19 and Okay. I've given 6 attempts so far. 6 attempts. Yes. In Okay. my 6 attempts, I've given 3 prelims, I've given 3 mains, and I've given 3 interviews. So every mains that I've given, I've qualified it, and I've given interviews in those attempts. And this was my 6th attempt, and I've scored rank 305 in it. Okay. Okay. I get it. Sir, how are you feeling now? Like after this journey of this up and down, harsh reality, and then again securing rank. So how do you feel about it? Well, there was a time when uh, I could not sink that in. What's happening really, and that I think happened for 1 good week. But after that, as I got more free time, I started realizing what has happened to me. And by this time, I think I have pretty much understood what is happening around, and I've accepted what is happening around. The most overwhelming feeling is the fact that quite a lot has changed in this whole duration. Like, So I have changed the city. So changing a city in itself is a huge change in itself. So you change the food, you change the weather, you change friends. You don't change friends, but the friends that you were with the whole day there, who were part of your everyday life, are now part of once in a while life. So that is one aspect of it. The kind of lifestyle that you were living there, you were isolated in a room, and presently talking about what I am living right now, I have a lot of people surrounding me. So that solitude has gone away. So quite a lot of things have actually significantly changed. okay. Uh, I feel I should ask you more about this spiritual side of your journey. So, do you see becoming an IAS officer as a spiritual calling? Um, Complicated answer, I'd say, because I am not a very spiritually inclined person. Okay. But then, to be very clear, it was my father's dream, and my dream as well, since the very beginning of my childhood, that I should become an IAS officer. So maybe in a way, it was something that the family was calling for. It was something that the destiny was calling for. And again, call it a coincidence or a spiritual aspect, but regardless of which other aspect in life I tried to explore, I ended up here. So Like I example? so I wanted to go into PhD. I wanted to go into academics. So the Okay. first 2 attempts I tried to give prelims, I did not qualify. The third time I got very nervous. I got very depressed. It was COVID. So I got sick with COVID, and I was really depressed with everything, with life, with family, and everything. And at that point, I felt like I should leave this preparation and I should turn towards academics and PhD. But for some reason, I could not go there despite having a JRF. And I came back into the preparation, and in the very next month I qualified prelims for the first time. So Okay. I got into PhD admission process, and I also got into prelims, and then I left it all together and I continued UPSC and came here. In between, I also failed the interview stage, and at that point I tried to go abroad. So I thought I'd go abroad, and eventually that also did not happen. And some incidents happened in my family, and that pushed me back again to the journey of UPSC, and I think that is how I ended up here. So call it a spiritual journey, call it a spiritual calling, or whatever. I think this is where we are right now. ओके सो जैसे सर आपने अभी मुझे बताया कि योर फादर वांटेड यू टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर एंड इवेंचुअली ये आपका भी ड्रीम बना
बट एट वॉट मोमेंट आपको ये महसूस हुआ, आपको ये फील हुआ कि दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू डू, और इस चीज़ के लिए मैं बना हूँ? I think there were a lot of times when I thought like this. During my preparation, when I looked at what all opportunities I have, what all career paths I have, I realized that there is nothing else that I would like to do more than this, because the kind of diversity that this job brings to your life, the kind of challenge that it brings, and I always dreamt to be a leader. I never wanted to be an average person. So I always wanted to be someone that people look up to, that people listen to, that people admire. And eventually, this is where I ended up being at every stage in my life. So in my school, in my college, in my later days, I always ended up at leadership positions. And I think IAS is one such position that gives you a lot of leadership roles. So I think at that point I realized that okay, this is something that I am meant for. ओके, आई गेट इट। सर मुझे ये बताइए कि आपके ये ओवरऑल जर्नी में आपकी इनर वॉइस ने आपको कैसे गाइड किया, आपके इंट्यूशंस ने आपको कैसे गाइड किया? सो आई थिंक कोई एक, जैसे कई लोगों को लगता है कि इफ समवन इज एन IAS देयर हैज़ टू बी अ कांस्टेंट वॉइस टेलिंग दैट पर्सन टू गो टूवर्ड्स द डायरेक्शन. It wasn't like this all the time. It was always different at different circumstances. So it depended on the circumstances. At some points I felt like I should go abroad. So the journey that I mentioned, that I had different inclinations at different points in time, that कभी मुझे लगा कि I should go abroad, कभी मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए. But there was a point in time last year where my mother got sick, and at that point I think my inner self called out to me and said, okay, no, there's nothing else that you should do. This is the only thing that is meant for you and for your family. And I think that is when the strongest inner voice from me called out to me and said, okay, this is what you want to do. कोई आपके लाइफ का ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ है कि आप कोई पब्लिक प्लेस पर गए, या फिर आप किसी से मिले जिन्होंने आपकी बात नहीं समझी, आपको अनदेखा कर दिया, और वहाँ आपको लगा कि हाँ यार, अगर मेरे पास में शायद पावर होता तो आई वुड हैव डन दिस डिफरेंटली, या फिर ये लोग मुझसे कुछ अलग तरीके से बिहेव करते? वो पॉइंट पे भी कभी कभी हम इंसानों को लगता है कि नहीं, अब मुझे पावर की तलब है, अब मुझे पावर चाहिए है। तो क्या कोई इंसिडेंट कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जहाँ आपको लगा है कि नहीं, अब मुझे बनना ही है और बनकर ही दिखाना है, और दिस वाज जस्ट द शीयर योर चॉइस कि नहीं, मुझे बनना है? आई थिंक ऐसा कोई इंसिडेंट तो कभी नहीं हुआ जब डेस्परेटली मुझे ये फील हुआ हो कि मेरे पास अगर पावर होता तो ये अभी बेटर होता. ये एक्चुअली इंटरेस्टिंगली रिजल्ट के बाद में ज़रूर हुई है, वेर आई फेल्ट दैट ओके, नाउ दैट आई हैव पावर, आई एम बीइंग हर्ड मोर. सो इफ़ आई हैड दिस पावर अर्लियर, और इफ़ आई हैड दिस टाइटल अर्लियर, things would have happened in a different manner. So I right now wish that okay, if I had qualified this exam sooner, I would have done this differently. So I'll tell you one such incident. I recently went to the hospital with my mother, and we were talking to the doctor in Nagpur. हिंदी। हाँ, तो यहाँ पर मैं अपने मदर को नागपुर में एक हॉस्पिटल में लेके गया था फॉर हर चेकअप, एंड शी अंडरवेंट अ सर्जरी लास्ट ईयर. तो उनका ऑपरेशन पिछले साल हुआ था, बहुत बड़ा ऑपरेशन था, और उसके बाद से उनकी तबीयत अच्छी नहीं है. तो उसके बाद अभी जब मैं उस सेम डॉक्टर के पास में गया, तब मैं क्वालिफाइड नहीं था. तब मैं एक बस नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का था, और उसकी मिडिल क्लास मम्मी थी, और उनका ऑपरेशन हो रहा था. अभी मैं जब उस डॉक्टर के पास गया, पहले तो उस डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 20 सेकंड में ओके ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, आप चले जाइए. जाते जाते मैंने उन्हें एक बात बताई कि सर, मैंने आपको पिछले साल बताया था कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और इस साल मैंने IAS क्वालिफाई कर लिया है, और शायद मुझे महाराष्ट्र कैडर मिलेगा. तुरंत उस डॉक्टर का पर्सपेक्टिव मेरे तरफ देखने का चेंज हुआ, और उन्होंने मुझे तुरंत बिठाया, सर प्लीज़ बैठिए. और अगले 20 मिनट तक उन डॉक्टर ने मेरे साथ बात की, और बातें भी, आप कैसे हैं, मेरे फ्रेंड्स ये IAS हैं, ये IPS मेरे फ्रेंड है, आप देखिए मेरे फ़ोन पे फ़ोटो देखिए, आपका नंबर मुझे दे दीजिए. जो डॉक्टर आपको सिर्फ 10 से 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं देता, जिसके OPD में बाहर 200 लोग वेट कर रहे हैं, वो आपको 20 मिनट बैठा के बात कर रहा है, तो आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि अगर ये बात पहले पता चलती इसे, या फिर पिछले साल अगर मैं IAS होता ऑपरेशन के दौरान, तो शायद वो ऑपरेशन किसी और तरीके से हुआ होता, और शायद आज मेरी मदर की कंडीशन कुछ और होती. तो
उस पॉइंट पे ये मुझे ज़रूर लगा कि शायद अगर मैं जल्दी बन जाता तो आज कुछ और आउटकम होता। ओके, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक इंसान का नज़रिया एक दूसरे इंसान के ओहदे के प्रति बदल जाता है। जी कभी जो किसी को पहचानता भी नहीं था, अब वो बस एक पोस्ट की वजह से ऑल ऑफ सडन रिस्पेक्ट, ऑल ऑफ सडन चेंज ऑफ बिहेवियर जी दिख जाते हैं। दिस इज़ ह्यूमन नेचर, जी वी कांट हेल्प इन इट, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। जी जी सर मुझे ये बताइए, आपके ये प्रिपरेशन में आपको बहुत डाउट हुआ होगा अपने आप पर भी। एक नॉर्मल सी बात होती है कि कोई भी टफ़ चीज़ के लिए जब हम एस्पायर करते हैं, सो हमको हमारे ऊपर डाउट होता है कि क्या हम ये कर पाएंगे, क्या हम ये नहीं कर पाएंगे। वहाँ आपके इनर वॉइस ने क्या आपको स्ट्रेंथ दी? वहाँ आपके इनर वॉइस ने आपको क्या पुश दिया कि नहीं रजत, वी हैव टू डू दिस? और कभी कुछ ऐसा हुआ है जहाँ आपको लो फील हुआ है और आपकी इनर वॉइस ने आपको बोला है कि नहीं, आई कैन डू इट? इसका भी अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग इंटरप्रिटेशन और अलग अलग सर्कमस्टांसेस रहे हैं। तो शुरुआती अटेम्प्ट्स में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं कर पाऊंगा, या फिर शुरुआत में लगा था कि ओके ठीक है कर लूँगा। बट जैसे जैसे सीरियसनेस आई सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट के साथ साथ, वैसे लगने लगा कि शायद दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो शायद ये मैं नहीं कर पाऊँगा। बट आगे जाके जैसे मैंने रियलाइज़ किया कि कंपटीशन कितनी कम है एक्चुअल में, जो एक्चुअल कंपटीशन है। जैसे कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस पार्ट? क्योंकि जहाँ तक मैंने समझा है और जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, तो मुझे ये पता चला है कि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। सैकड़ों कोचिंग है, सैकड़ों बच्चे हर साल अपीयर होते हैं, और आप कह रहे हो कंपटीशन नहीं है। सो लाइक व्हाट इज़ द ट्रुथ अकॉर्डिंग टू यू? सो इट डिपेंड्स कि कौन से पर्टिकुलर फेज़ में आप कंपटीशन को कंसिडर कर रहे हो। जब आप प्रीलिम्स की बात करते हो तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम क्या है। ज़्यादातर बच्चों को सिर्फ इतना पता है कि प्रीलिम्स होती है, जीएस होता है, सीसैट होता है, उसमें कुछ किताबों से चीज़ें आती हैं। बट ओवरऑल स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, मेंस में कौन से पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे, वो आप में कौन सी क्वालिटीज़ ढूंढ रहा है, कौन से टॉपिक्स ढूंढ रहा है, ये एग्ज़ाम का नेचर, एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर, एग्ज़ाम का जिस्ट किसी को नहीं पता होता। और ये बहुत स्मॉल सेट ऑफ पीपल को पता होता है, और उनमें भी दो लोग होते हैं। एक होते हैं जो शेयर हार्डवर्क करते हैं बहुत ज़्यादा, और दूसरा जो क्वालिफाई करते हैं। और क्वालिफाई करने वाले दूसरा एक सेक्शन है जो बहुत स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, जो सिर्फ ऊपर से ये देख रहे हैं कि एग्जामिनर क्या चाहता है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछता है, वो पढ़ के जाएंगे और वो कर लेंगे। तो इस सेंस में बहुत कम कंपटीशन है, बिकॉज आप उस हार्डवर्किंग वाले सेक्शन को अगर देखेंगे तो बहुत कम है, और ये स्मार्ट वर्क वाला सेक्शन जिनको समझ में आ रहा है वो भी कम है। और ज़्यादातर ये पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आईआईटीज़ और प्रीमियर कॉलेज से यूजुअली बनता है। तो अगर आपको आना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड यू विल रियलाइज दैट प्रीलिम्स every year, if you understand the pattern, if you understand what it takes, you qualify prelims every year even without studying, or for that matter studying very less. And competition जहाँ पे बढ़ता है वो interview में है, because at that point I think every year there are roughly 8 to 9,000 people who are the competition, who study well, and out of that the real competition is just 2,000 people. So those 2,000 people are competing against each other in mains, in interview. Prelims में all the people who are coming वो एक तरीके से नीचे कट ऑफ वाले खैरात में आ जा रहे हैं, but they are not prepared for mains, which is why they don't even qualify. But the actual competition is that 2,000 people, and उनमें cutthroat competition है, because that consists of the people who have qualified in the last year किसी lower service में, the people who have given 2 to 3 interviews, या फिर स्टेट सर्विसेज के इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं, तो ऐसे सारे, या फिर बहुत ही ब्रिलियंट लोग हैं। तो दैट इज़ द स्मॉल सेट ऑफ कॉम्पिटिशन दैट एग्जिस्ट। यू वॉन्ट टू बी इन द टॉप 1,000 ऑफ दोज 2,000, सो दैट इज़ वेयर द एक्चुअल कॉम्पिटिशन लाइज। ओके, जैसे मेरे एनालिसिस से मुझे ये समझा है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो अक्सर ब्रेक द ईगो कहा जाने वाला एग्ज़ाम होता है, कि कहीं ना कहीं एक सेट पर आके आपको आपका ईगो ब्रेक करना होता है, तभी आप एक ऑफिसर बन पाते। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपना ईगो ब्रेक करना पड़ा हो इस ओवरऑल जर्नी में? हाँ बिल्कुल, एंड आई थिंक उस और क्या ये बात सच है? बिल्कुल होता है ऐसा। आई थिंक again it depends, there is no yes or no answer to a lot of questions that
आर बीइंग आस्क्ड हियर, बट इस क्वेश्चन का आंसर येस होगा, दैट येस यू हैव टू लीव योर ईगो असाइड इफ यू वांट टू कम टू दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज देयर आर सर्टन स्किल सेट्स जो उस एग्जामिनर को चाहिए. अगर उस स्किल सेट में आप बैठ रहे हो अपने ईगो को छोड़कर, तो अगर आपका ईगो उसके साथ में आपको करवा दे रहा है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम. बट देन एट अ पॉइंट अगर आप ईगो के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि मुझे तो सब आता है, या फिर मैं पिछली बारी मुझे इस स्टेज पे इतना अच्छा मार्क मिला था इसलिए इस बार में मिल जाएगा और मैं इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करूँगा, या फिर कॉन्फिडेंटली ओवर कॉन्फिडेंटली चला जाऊँगा. तो उसका एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताता हूँ. आई हैड टू lose an entire attempt because of it when I scored very nicely in mains. So my fourth attempt, I went to the interview, and उससे पहले वाला थर्ड जो अटेम्प्ट था उसमें इंटरव्यू में आई स्कोर्ड 180 मार्क्स, 180 प्लस. एंड एट दैट पॉइंट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. पिछले बार मुझे इतने मार्क्स अच्छे मिले हैं तो इस बार तो मिल ही जाएंगे. तो आई डिड नॉट वरी टू मच अबाउट दी फोटो रिलेटेड थिंग्स, आई डिड नॉट वरी टू मच अबाउट द डॉक्यूमेंट रिलेटेड थिंग. एंड उसी की वजह से फिर गड़बड़ होकर आई हैड टू लूज द एंटायर इंटरव्यू एंड आई स्कोर्ड ओनली 140 मार्क्स. सो फ्रॉम 180 to 140, that jump was, I think, largely because of my overconfidence and my casual approach. That casual approach comes from ego. ओके सर, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉइस ऑफ फियर एंड वॉइस ऑफ ट्रुथ इनसाइड एनी ह्यूमन बीइंग? इन योर ओपिनियन वॉइस ऑफ फियर और वॉइस ऑफ ट्रूथ के बीच का डिफरेंस क्या होता है, और आपकी जो वॉइस थी वो कौन सी थी? बिकॉज वी आर ह्यूमंस, हमें फियर भी होते हैं, ट्रूथ भी होता है. आपने किसे ज़्यादा वेटेज दिया? कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, आई वुड से. अलग अलग सर्कमस्टांसेस पे अलग अलग चीज़ें हुई हैं और ज़रूरी नहीं है कि दोनों अलग चीज़ें हों. आई थिंक एट मैनी प्लेसेस बोथ ऑफ देम आर द सेम, बिकॉज द ट्रूथ कैन बी फियर एंड एट सम पॉइंट्स फियर कैन बी ट्रूथ. So there is no separate isolated way of looking at it. It depends on the circumstances. Sometimes truth can be frightening, and fear can be the truth. So, something that you have to overcome. So at that point, I think it doesn't matter which one you give more weightage to. What matters is how you sail through it, and what matters is the outcome. So how you sail through it? You sail through doing things that are required. Things that the exam requires. So let's say we are talking in the context of an examination. तो examination में if it is the voice of truth or if it is the voice of fear, आपको ultimately जाना result की ही तरफ है. आपको चाहे वो डर के माध्यम से हो या फिर वो सत्य के माध्यम से हो, आपको जाना रिजल्ट की तरफ है. अब उस रिजल्ट की तरफ जाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? आप पेपर्स एनालाइज करोगे, आप ये सब एनालाइज करोगे, आप पढ़ोगे. अब वेदर यू यूज़ द ट्रुथ दैट ओके द एग्जामिनेशन हैज़ दिस मच कॉम्पिटिशन, और फियर कि अगर नहीं हुआ तो मैं शायद अनएम्प्लॉयड रह जाऊँगा. Both the situations are compelling you towards one direction. The ultimate goal is to qualify. It does not matter what voice you give more attention to. What matters is whether you get the outcome. Okay. Few more questions I'll ask you regarding the same. आप हमारे व्यूवर्स को और क्या बताना चाहते हो कि वो कौन सी गलती नहीं करे? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ देयर प्रिपरेशन में क्या सही है क्या गलत है, ये हम लाखों वीडियो में अक्सर देखते ही हैं. मैं आपसे ये इंसाइट चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज़ों को ज़्यादा वेटेज दे, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टडी. क्योंकि बिकॉज मैंने यूपीएससी के बारे में एक चीज़ ये भी एनालाइज की है कि यहाँ पर ओनली स्टडी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आपको और भी चीज़ों में प्रो होना है तो आप एक ऑफिसर बन सकते हो. क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो दिन में 15-15, 17-17, 20-20 घंटा पढ़ रहे हैं और जो 6-6, 7-7, 8-8 अटैम्प्ट्स दे रहे हैं, फिर भी उनका प्री भी क्वालिफाई नहीं हो जी. और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे भी आते हैं, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी आते हैं जो दिन में सिर्फ 4 घंटा पढ़ते हैं और उसी साल वो रैंक निकाल के चले भी जाते हैं. तो ऐसी क्या कमियाँ हैं और ऐसी कौन सी कमियों को हमको उभारना है जिससे हम पढ़ाई के अलावा भी और सारी चीज़ों के करने के बाद भी हम रिजल्ट तक पहुंच सकें? ओके, तो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये बार बार मैं काफ़ी जगहों पे बोलना पसंद भी करता हूँ अगर मुझे आता है सामने से. वो ये कि मोस्ट ऑफन इस एग्ज़ाम जर्नी में आने वाले जो लोग हैं वो कॉलेज और स्कूल को
पास करके आते हैं कोचिंग्स में। राइट। अब और ज़्यादातर जो प्रिपरेशन करते हैं वो सबसे पहले जाते कोचिंग में ही हैं, तो वो एक क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे पढ़ेंगे और वो फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे। अब प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग कोचिंग से मतलब कॉलेज से निकल के जब कोचिंग आते हैं वो अभी भी उस कॉलेज और स्कूल की मेंटालिटी में ही बैठे होते हैं। तो उनका नज़रिया ये होता है कि जो सामने टीचर बोल रहा है, जैसे हम कॉलेज में होते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, साल भर हम सिर्फ क्लासेस अटेंड करते हैं और सिर्फ क्लास अटेंड करना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। हमें लगता है कि हमने क्लासेस अटेंड कर लिए, हमने लेक्चर्स अटेंड कर लिए, हमने क्लास में नोट्स बना लिए, घर पे जाके नोट्स पढ़ लिए, हमने साल भर बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। एट द एंड ऑफ इट हमने 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई की है, वी आर गुड इनफ। और ये सेम चीज़ फिर वो कोचिंग में या फिर प्रिपरेशन में आकर या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या फिर किसी भी नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आकर अप्लाई करते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट these examinations are not simply looking for a person who has bookish knowledge. They are looking for people who have the aptitude of a civil servant or a doctor or an engineer or whichever exam you are giving. आप इसे रियल लाइफ में कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं ऐसे जस्टिफाई करूँगा कि आप एग्ज़ाम के तौर पर देखिए, यूपीएससी प्रिपरेशन के तौर पे देखिए। एक बच्चा जो दिन में 12 घंटा पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ रट रहा है, किताब शुरुआत से लेकर अंत तक उसने ख़त्म कर दी, अब उसने एग्ज़ाम दी। Examination UPSC is basically looking for civil servants. It is looking for IAS IPS. IAS IPS क्योंकि वो गवर्नमेंट बॉडी है, वो गवर्नमेंट में काम करने के लिए IAS IPS ढूंढ रही है, ठीक है। अब IAS IPS का सबसे बड़ा काम क्या होता है? उन्हें पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करनी होती है। पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए उन्हें सबसे बड़ी क्वालिटीज़ क्या चाहिए होंगी कि वो गवर्नमेंट ने या फिर पार्लियामेंट ने या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाए हुए पॉलिसीज़ को सबसे पहले समझना सीख पाए। सो ही इज़ एबल टू कॉम्प्रहेंड देम. So the first and the most important quality of a civil servant is comprehension. Comprehension of orders, comprehension of policies, of laws and rules and everything. अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप पेपर दे रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मेंस में, मेंस का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और आपने सिर्फ थर्ड पार्ट को ही तवज्जो दी है, आपने शुरुआत के 2 पार्ट्स को छोड़ दिया। यू आर टेलिंग टू द एग्जामिनर दैट आई डू नॉट हैव कॉम्प्रहेंशन, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू टेल मी. If you do not have the quality of comprehension, how will you be a good IAS officer? Because ultimately you are wanting to be an IAS officer, not a topper. आपने जो किताबें पढ़ी हैं आप वो क्वेश्चन में 2 पेजेस भर के लिख दोगे, but if you're not answering what the examiner is asking, as an IAS officer you'll do the same. Your boss will ask you to do something, you'll do something else. So that is the correlation, that you're not only studying for the sake of studying, आप एक ऑफिसर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के अलावा आपको एक ऑफिसर की तरह सोचना भी सीखना पड़ेगा, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जिसमें सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड, जिसमें कॉम्प्लेक्स थॉट्स को समझना, प्रोसेस करना, गुड स्पिरिचुअल एंड मेंटल हेल्थ, ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सर, मुझे ये बताइए आपकी ओवरऑल जर्नी में यहाँ तक कि किसी संत महात्मा साधु, किसी किताब या फिर पर्टिकुलर किसी लिटरेचर ने आपकी प्रिपरेशन को या फिर आपके विजडम को? आई वॉज अ पर्सन जो काफ़ी स्पिरिचुअल हुआ करता था. आई वर्शिप्ड, आई डिड फास्ट एंड एवरीथिंग, और मुझे आज भी संस्कृत स्तोत्र और वो सब याद हैं. बट आई डोंट थिंक आई हैव अ सिंगल पर्सन फॉर दैट मैटर, स्पिरिचुअल और नॉन स्पिरिचुअल, who influenced me as much as anyone can credit. So I don't think I have one piece of literature or a person or a book that has influenced me pretty much. I think it's all together, and I don't take any source at its face value. I question everything. Okay, that's a good way to put life also. कि you should question everything so that your mind can be awakened more. एक अपने टॉपिक से हटके मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ रिगार्डिंग साइलेंस. सिंस आई अंडरस्टैंड, और ये मैंने समझा है कि व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी प्रिपरेशन हमको साइलेंस को पहचानना पड़ता है, और मुझे ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा शोर करने वाली कोई चीज़ होती है तो वो साइलेंस ही होती है. सो क्या ये साइलेंस ने, जैसे इफ़ आई पुट इट लाइक दिस वे कि व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद द साइलेंस or this solitude, how this solitude helped you to sail through this choppy ocean of preparation? I am the kind of person who likes to be alone. I am the kind of person who enjoys solitude and peace. Not necessarily silence. Silence would mean the absence of anything.
And solitude does not necessarily mean absence of everything. Solitude may mean nature, and you as the sole human. That can also mean solitude. So you as a sole human can also mean solitude, but it may also involve a lot of other natural aspects. तो उसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं, और मेरे लिए सोलिट्यूड वही था कि आई वुड प्रेफर नेचुरल क्रीचर्स अराउंड में, तो चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, और वही मेरे लिए साइलेंस का हमेशा काम करते हैं, बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ ह्यूमन डिस्ट्रैक्शन अराउंड. I always had just my animals and solitude. And what it helps you with is it gives you a time to introspect about yourself. It gives you the time to know what is happening around you. It gives you the time to understand how you feel about yourself, about the world, how people feel about you and about things around you. So, in order to think about everything and to sail out of it, I think silence and solitude is important for a person like me, at least. ओके, आपके पास कौन से पेट थे सर, या है? So now that I've left Delhi, I don't have pets, but I had 14 birds of different species. 14 birds of different Yes, species. yes, yes. If I'm not wrong. Yes, yes. 14 birds, and I had 5 aquariums, and I also had a dog. 14 birds, 5 aquarium, and a Yes. dog. Yes. And along with this, you have prepared for UPSC and eventually qualified with the rank of 305. Yes. Commendable. Thank you. Commendable. Okay. What message or what tips you would like to give, not to the aspirants specifically, but to the people who are watching this podcast, those जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे? जैसे आपने मुझे कुछ समय पहले बताया था हमारे लास्ट डिस्कशन में कि आपका इंटरेस्ट है सोलो ट्रैवल करना, बाइक राइड करना, माउंटेन ट्रेक करना. तो आप आपके विजडम का एक सा कौन सा पार्ट आप अपने व्यूवर्स को बताना चाहोगे, जो नॉट ओनली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स बट एक जनरल पब्लिक के लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, कुछ एडिशनल टिप्स या एडवाइस हो? I would say कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दैट यू आर हैप्पी इन ऑल सर्कमस्टेंसेज. ज़रूरी नहीं कि आप हैप्पी हो, बट ultimately you do things that are good for you, for your family, and for the space around you. And you have to always keep in mind that the world works on self-interest principle, and you have to somehow sail through it with your own self-interest. So that is something that I learned hard way. And at this point, I think I understand it, that everything works eventually for the self-interest. Provided कि आप किसी का खराब नहीं कर रहे हो, there is nothing wrong in doing something for yourself. Providing a good life to your family, to your pets, to yourself is nothing bad, provided you're not harming anyone. So do that, and in order to do that, you have to dream big. You have to step out of your cocoon. You have to step out of the comfort zone, and you have to dream big. Whichever field you want to go, you may go. आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, बट इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, aim to be an AIIMS doctor. If you're an engineer, you want to be an engineer, aims to become an engineer from IIT Bombay. Because if not IIT Bombay, you'll maybe land up in some NIT. But अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ एंट्रेंस देकर मैं इंजीनियर कर लूँगा, if your dream is not that big, then it becomes problematic. You're stuck at mediocre, and ultimately mediocrity at this point is something that I think does not lead to a very nice life. Okay, so if I put it rightly, it means कि आप जो भी कर रहे हो बेस्ट करें. Exactly. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much for coming on our show. Thank you so much for sharing your wisdom with our viewers. I am more than grateful to you for every single word that you have shared with us. Thank you so much, and I really wish to say all the very best. Thank you. For your future endeavors. Thank you. और मैं चाहता हूँ कि आप क्वालिफाई करके जब आप पोस्ट हो, तो मैं नहीं, हम सारे पब्लिक चाहते हैं कि हम बहुत सारे चेंजेस देखें. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर. Thank you.